everyone, this is Parul and here I am going to explain you one of the topic of biology, that is heredity. As we all know that sexual reproduction leads to the variation. Sexual reproduction के दौरान variation आते हैं. Why? Just because of fusion of two different gametes. One is male gamete, other is female gamete. Okay, and we all human beings are the result of sexual reproduction. Fine. Let's say it's a parent, okay, and during the reproduction it gave rise to the new offspring is of own kind. Human being का जो बेबी होगा वो human being होगा, right? But still उसमें कुछ variations आते हैं. Like ये father है, father का जो skin का जो texture है वो baby के skin texture से match कर रहा है, but second baby के skin texture से match नहीं कर रहा. Although the basic body design of the parent and the offspring is same. It means few of the characters are transmitting from parent to the offspring. अभी आप लोगों के अंदर भी ऐसा ही है. Okay, few of the characters in your body are matching with your father. Maybe आपकी height आपके father से match कर रही है. Maybe आपकी body का complexion आपकी mother से match कर रहा है. Okay, आपके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके ग्रैंड पेरेंट्स से मैच करते हैं, कुछ आपकी मदर से मैच करते हैं, कुछ आपके फादर से मैच करते हैं. इट मीन्स देयर इज अ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन टेक्स प्लेस. ओके, सो द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी. ओके, बट during the sexual reproduction, variation also occur. See, here is a variation. Variation क्यों आया? Just because of sexual reproduction. When the two different gametes are involved and the fusion between two different gametes, one the male gamete and one the female gamete. Okay, and fusion between two different gametes takes place, leads to the variation. But the basic body design is similar. So here is the transmission of characteristics from one generation to another generation. Okay, आपके अंदर आपके पेरेंट्स का बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करते हैं और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं करते. ओके, बट ह्यूमन बीइंग का बेबी तो ह्यूमन बीइंग ही होगा, राइट? सो द बॉडी डिजाइन इज सेम. वेरिएशन अकर ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स. ओके, एंड the term that we are going to connect with this concept is heredity. Transfer of character from one generation to another generation. For example, let's say it's a father. Okay, and two babies. Let's say it's a baby boy, baby girl. Okay, body design is same in both the organism. But father का जो complexion है वो एक बेबी से मैच कर रहा है, दूसरे बेबी से मैच नहीं कर रहा है. Okay, here is a different complexion. See, so this is variation, change आना. Similarity क्या है इनमें? Body design same है. जो body design father का है वही body design offspring का है. So the transfer of characteristics from one generation to the next generation is called heredity. Okay, for example, आपका hair texture आपकी मदर से मैच कर रहा है. इट मीन्स आपकी मदर की बॉडी में जो कैरेक्टरिस्टिक्स उनके हेयर टेक्सचर को कंट्रोल कर रहा था वो कैरेक्टर उनसे आपके अंदर पास ऑन हो गया. सो द कैरेक्टर दैट पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट. यू कैन से कि फादर का जो स्किन कॉम्प्लेक्शन कंट्रोल करने वाला जो कैरेक्टर था वो कैरेक्टर पास ऑन होके नेक्स्ट जनरेशन में आया, तो इट मीन्स दिस कैरेक्टर इज इनहेरिटेड ट्रेट. ट्रेट मीन्स कैरेक्टर. ओके, आपका ये ट्रेट फिजिकल भी हो सकता है, आपका ये ट्रेट जेनेटिक भी हो सकता है. फिजिकल ट्रेट का मतलब जो आप अपने फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू चेक ऑन कर सकते हैं. लाइक कॉम्प्लेक्शन आपको बाहर से दिखाई दे रहा है, राइट? हाइट, मे बी आपका हाइट का जीन आपके फादर से मैच कर रहा है. इट मीन्स द जीन फॉर द हाइट इज इनहेरिटेड इन योर बॉडी, राइट? सो वी कैन कंक्लूड द टर्म हेरिडिटी मीन्स द प्रोसेस by which the transfer of characteristics takes place from parent
to the next generation is called heredity. And during the sexual reproduction, variation also occurs, and as we have already discussed, that variation is a result just because of fusion of two different male and female gamete. Okay, although we all are the result of sexual reproduction, so we are quite similar with their parents, but we are not the exact copy of our parents. We have some variation, right? But the body design is same. So few of the characteristics are also there in our body that is matching with our parents. It may be matching with your grandparents, right? So the transfer of character from one generation to another generation is called heredity. Okay, any of the character can be passed on from one to next generation. I hope the term heredity is clear to you. The transmission of characteristics from one generation to another generation is called heredity. In the last topic, what we did, that how the traits are being transferred from one generation to another generation. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रेट्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं. लाइक आपके पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपसे कुछ हद तक रिजेंबल करते हैं, राइट. सो नाउ वी आर गोइंग टू नो मोर अबाउट द हेरिडिटी. ओके, अब क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि ट्रेट ट्रांसफ़र हुए कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. आपके ग्रैंड पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर आपके पेरेंट्स में हैं और आपके पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स आपके अंदर हैं, तो वो ट्रेट ट्रांसफ़र हुए कैसे. ओके, सो उसका क्वेश्चन का आंसर अब हमारे सामने है. सी, हमारी बॉडी में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? 23 pair of chromosomes are there in our body, right? Out of 23 chromosome, 22 pair of chromosomes, 23 pair, right? 23 pair of chromosomes are there. Out of 23, 22 are autosomes, okay? And the one pair is sex chromosome. One pair is sex chromosome, right? अब ये सेक्स क्रोमोसोम जो है ये मेल में और फीमेल में वेरी करता है. इन केस ऑफ मेल द क्रोमोसोम इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ XY, राइट, एंड इन केस ऑफ फीमेल इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ XX. समझ आया कि 22 पेयर सब में सेम होते हैं, बट मेल में 23 पेयर जो है लास्ट जो है वो मेल में XY की फॉर्म में होता है और फीमेल में XX की फॉर्म में होता है. अब ये XY और XX कहाँ होते हैं? आपके जो गैमीट होते हैं, ओके, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, लाइक मेल में जो गैमीट होता है वो आपका होता है स्पर्म और फीमेल में जो गैमीट होता है ये होता है आपका ओवम. तो ओवम एक सेल है, ठीक है, स्पर्म भी एक सेल है. अब सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, राइट, और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. अब क्रोमोसोम किसके बनते हैं? क्रोमोसोम डीएनए के बनते हैं. जैसे बूंदी का लड्डू किसका बनता है? बूंदी का बनता है. सेम वे क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए. ओके, अब डीएनए कैसा दिखता है वो देखते हैं. डीएनए का स्ट्रक्चर ये होता है डबल हेलिक्स. इट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. ओके, अब इस डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट का मतलब है कि डीएनए का वो पार्ट जो पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, जो पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिनोट करता है, उसको हम बोलते हैं जीन. इसको हम बोलते हैं जीन. यू कैन से, यानी कि डीएनए का ये पार्ट किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए
इज कॉल्ड जीन। और जीन की एक और डेफिनेशन भी है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन। तो जीन जो है ये आपके ट्रेट को कैरी करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो फॉर एग्जांपल मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल क्या है आपकी? स्पर्म, राइट। मेल जर्म सेल आपकी है स्पर्म। अब स्पर्म सेल के न्यूक्लियस में जो डीएनए है और उस डीएनए पे जो पर्टिकुलर जीन है वो पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब हाफ कैरेक्टर फादर से और हाफ मदर से जाते हैं, तो फादर के स्पर्म सेल के डीएनए के अंदर जो जीन पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं। क्लियर? ऑटोजोम पास ऑन नहीं होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम के अंदर जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी करने वाली जीन है वो ट्रेट पास ऑन होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। अब ये सारा का सारा स्टोरी हमें किसने बताया? ये सारे क्वेश्चन के आंसर कहाँ से आए? कौन था ये बताने वाला? और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन है कि हाउ डू फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म गेट ट्रांसमिटेड, कैसे ट्रांसमिट हुए? पर्टिकुलर डीएनए के थ्रू। डीएनए के ऊपर पर्टिकुलर सेगमेंट था जीन, एंड जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर दैट इज बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। ओके, क्या ये ट्रांसफर कैरेक्टर जो हुए हैं आपके, क्या एक ऑर्गेनिज्म के अंदर थ्रू आउट द लाइफ सेम रहते हैं? यस और नो? और ये वेरिएशन क्यों आया, कैसे आया? इन सब का आंसर दिया था ग्रीगर जॉन्स मेंडल ने। ओके, ही वॉज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। उन्होंने सारी के सारी स्टडी की थी। ओके, उन्होंने जीन लेवल पे स्टडी किया, उन्होंने वेरिएशन के बारे में स्टडी किया, ओके, उन्होंने हेरिडिटी के ऊपर स्टडी किया, एंड ही कंक्लूडेड everything about this genetics. Okay, genetics is the branch of science, branch of biology actually, main biology. It is a branch of biology that deals with the study of gene, genetic variation and heredity. इस लेवल पे पूरी की पूरी स्टडी होना, यानी कि जीन लेवल तक स्टडी होना is called genetics, and that's why the Mendel is called father of genetics. ये सारे सवालों के जवाब मेंडल ने दिए थे। Okay, now the term variation is there. अब वेरिएशन कैसे आया? What is variation? The difference among individual of a species. जैसे हम सब ह्यूमन बीइंग है ना, हम रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से इन टर्म्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, पर हम लोग एक दूसरे की कार्बन कॉपी नहीं है। हम लोगों के फीचर्स मैच नहीं करते हैं, हम लोगों का कॉम्प्लेक्शन मैच नहीं करता है, हम लोगों का डीएनए भी एग्जैक्ट नहीं है। तो वेरिएशन कैसे आया? Okay, that we are going to learn in this chapter, heredity. Thank you.